নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে MD টিউটৰিয়েল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দী বিষয়ৰ 16 নং পাঠ অমৃত বাণী পাঠটিৰ অনুশীলনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহি থাকা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ব'লা তেন্তে ভিডিঅ'টি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। 1 नंबर, सही कथन के आगे सही और गलत कथन के आगे क्रॉस निशान लगाओ। क मधुर वचन औषधि के समान आरामदायक होते हैं। मधुर वचन मिठा वचन की হয় ঔষধৰ নিচিনা आरामदायक হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব। ख निंदा करने वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। নিন্দা কৰা মানুহৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব লাগে, কিন্তু ইয়াত কবিৰ মতে এইটো ভুল। নিন্দা কৰা ব্যক্তি আমাৰ কাষত ৰাখিব লাগে। ग ज्ञानी व्यक्ति अपने लिए धन का संचय करते हैं। জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে নিজৰ কাৰণে ধন সঞ্চয় কৰে। তো ইয়াত কিন্তু কবিৰ মতে যিজন জ্ঞানী ব্যক্তি তেওঁ নিজৰ কাৰণে নহয়, আনৰ উপকাৰৰ কাৰণেহে ধন সঞ্চয় কৰে। তো এইটো অশুদ্ধ। घ हमें अपना दुख अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। আমাৰ নিজৰ দুখ নিজৰ মনতে দবাই ৰাখিব লাগে। এইটো শুদ্ধ। उंगा सुई का काम तलवार कर सकती है। सुई মানে কি? এই বেজী। বেজীৰ কামটো তৰৱালে কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। এইটো অশুদ্ধ। च गरीबों की मदद करने वाले ही सच्चे अर्थ में बड़े व्यक्ति होते हैं। দুখীয়া সহায় কৰা মানুহে সঁচা অৰ্থত ডাঙৰ মানুহ হয়। এইটো শুদ্ধ। दो पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क संत कबीरदास के आराध्य कौन थे? संत कबीरदासर आराध्य देवता কোন আছিলে? उत्तर संत कबीरदास के आराध्य निर्गुण निराकार राम थे। ख कबीर शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ, महान। कबीर शब्दটোৰ অৰ্থ হ'ল ডাঙৰ, শ্ৰেষ্ঠ আৰু মহান। ग कवि के अनुसार क्या करने पर हमें हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। कबीर मते हमारे जीवन की करिले दुख केতিয়াও नाहे। उत्तर अगर हम सुख की स्थिति में भी अपने आराध्य का स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। যেতিয়া আমাৰ জীৱনত সুখ আহিব, সুখ থাকে, সেই পৰিস্থিতি যদি আমি ভগৱানক যদি স্মৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনত আৰু দুখ কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। ग कबीर रहीम का पूरा नाम क्या था? कबीर रहीমৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি আছিলে? उत्तर कबीर रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खानखाना था। कबीर रहीমৰ पूरा नामটো अब्दुर रहीम खानखाना। उंगा किनके साथ कबीर रहीम की गहरी मित्रता थी? उत्तर कवि गोस्वामी तुलसीदास के साथ कबीर रहीम की गहरी मित्रता थी। कवि गोस्वामी तुलसीदासৰ লগত कबीर रहीমৰ ভাল मित्रता আছিল। च श्री कृष्ण ने किसके साथ बचपन की मित्रता निभाई थी? भगवान श्रीकृष्णই সৰু কালত কাৰ লগত বন্ধুত্ব रक्षा কৰিছিল? उत्तर श्री कृष्ण ने गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। भगवान श्रीकृष्णই गरीब ब्राह्मण सुदामाৰ লগত তেখেতৰ मित्रता আছিল। তিনি क्वेश्चन नंबर 3 संक्षेप में उत्तर दो। क बूढ़े व्यक्ति की खोज में निकलने पर कवि को क्या अनुभव हुआ? कविয়ে যেতিয়া বেয়া মানুহ বিচাৰিবলৈ ওলাইছিল তেতিয়া কবিৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আছিল? उत्तर जब बूढ़े व्यक्ति की खोज में कवि निकले
तो उन्हें कहीं भी बुढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। কবিয়ে যেতিয়া বুঢ়া বেয়া মানুহ বিচাৰিবলৈ ওলাইছিল তেতিয়া তেওঁ ক'তো বেয়া মানুহ বিচাৰি পোৱা नासिल। लेकिन जब उन्होंने अपने आप में अर्थात अपने दिल में खोजा तो पाया कि उन जैसा बुरा और कोई नहीं है। কবিয়ে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ মনত বিচাৰিছিল, নিজৰ মনৰ ভিতৰত বেয়া মানুহ বিচাৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ পাইছিল যে তেওঁতকৈ বেয়া মানুহ আৰু কোনোৱে নাই। ख अपने शिष्यों को बनाने में गुरु किस प्रकार कुम्हार की भूमिका निभाते हैं। গুৰুৱে শিষ্য বনাবলৈ কিদৰে কুমাৰৰ ভূমিকা ग्रहण करे। उत्तर, जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को बनाते समय अपने कोमल हाथों को घड़े के भीतर सहारा देकर बाहर धीरे धीरे प्रहार करके एक सुंदर घड़े का निर्माण करता है। কি কৈছে যে এজন কুমাৰে যেতিয়া তেওঁ এটা ঘড়ে মানে কি কলহ, যেতিয়া এজন কুমাৰে এটা কলহ বনায় তেতিয়া কি কৰে, তেওঁ কোমল হাতখন ভিতৰত সোমোৱাই দি কি কৰে, বাহিৰৰ পৰা লাহে লাহে প্ৰহাৰ কৰি এটা সুন্দৰ ধুনীয়া এটা ঘড়ে মানে একটা কলহ निर्माण करे। ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को बड़े प्यार और कोमलता से ज्ञान देते हैं, तो कभी कभी उन्हें कठोर वाणी से डांट फटकार भी देते हैं। ঠিক সেইদৰে কি হয়, এজন গুৰুৱে শিষ্যক বৰ মৰমেৰে জ্ঞান দিয়ে আৰু কেতিয়াবা কি হয় কঠোৰ বাণীছে মানে তেওঁ অলপ টানকে অলপ কিবা কৈ পায়, তাকি उनके अंदर जो कमियां हैं तो गुरुৱে শিষ্যক অলপ টানকে কেতিয়াবা ক'বলগীয়া হয়, যাৰ কাৰণে যাতে শিষ্যজনৰ যি দুৰ্বলতা যি মানে কমি আছে সেইখিনি তেওঁ যাতে দূৰ কৰিব পাৰে। इस तरह शिष्य को बनाने में गुरु कुम्हार की भूमिका निभाते हैं আৰু এইদৰে গুৰুৱে শিষ্য বনাওঁতে এজন কুমাৰৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। ग साधु की जाति के बारे में पूछने के संदर्भ में कवि ने क्या किया। সাধুৰ জাতিৰ বিষয়ে সোধাৰ সন্দৰ্ভত কবিয়ে কি কৈছিল। उत्तर, साधु की जाति के बारे में नहीं बल्कि उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। तलवार को रखे जाने वाले म्यान को नहीं अपितु तलवार को महत्व दिया जाना चाहिए। एजन साधु বা তেওঁ কি জাতি সেইটো আমাৰ সুধিবৰ বিষয় নহয়, আমাৰ বিষয়টো হ'ল তেওঁ কিমান জানে, তেওঁৰ জ্ঞান কিমান আছে সেইটোহে আমাৰ জানাৰ দৰকাৰ। যেনেকৈ তলোৱাৰ এখন ৰাখাৰ ওপৰৰ কাভাৰটো আমাৰ চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা দৰকাৰ নাই, কাৰণ তলোৱাৰটো কিমান ধাৰ সেইটোহে আমাৰ महत्व दियार प्रयोजन। घ कबीर रहीम ने ऐसा क्यों कहा कि थोड़े दिनों के लिए आने वाली विपत्ति अच्छी होती हैं। कबीर रहीमे কিয় কৈছিল যে অলপ দিনৰ বাবে অহা বিপদ ভাল, এই বুলি কিয় কৈছিল তেওঁ। उत्तर, कबीर रहीम ने ऐसा इसलिए कहा विपत्ति के समय अपना साधन ही काम आता है, कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता। ऐसा कमल जिसके आसपास जल ना हो सूरज उसकी रक्षा नहीं कर सकता। কৈছে কবিয়ে যে অলপ দিনৰ কাৰণে আহা বিপদ আমাৰ ভাল, কিয় কাৰণ कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता, কোনেও বেলেগ মানুহে আমাক সহায় কৰি নিদিয়ে, নিজৰ যিটো সমস্যা এইটো নিজেই সমাধান কৰিব লাগিব। ऐसा कमल जिसके आसपास जल ना हो, এনেকুৱা এটা ধৰ পদুম ফুলৰ যদি পানী না থাকে আশে পাশে তেনেহ'লে सूरज उसकी रक्षा नहीं कर सकता। সূৰ্যৰ ৰশ্মিয়ে সেই বা সূৰ্যই এই এটা গছক পানী নথকা এটা পদুম ফুলক সূৰ্যই ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। उंगा कवि के अनुसार हमें मन की व्यथा
किस लिए मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। কবিৰ মতে আমাৰ মনৰ দুখবোৰ কিয় আমি মনৰ ভিতৰতে লুকুৱাই ৰাখিব লাগে। उत्तर, कवि के अनुसार हमें अपने मन की व्यथा मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। কবিৰ মতে আমাৰ মনৰ দুখবোৰ মনৰ ভিতৰতে लुकुआ राखिब लगे। ऐसा इसलिए कि दूसरे व्यक्ति सुनकर नखरे ही करते हैं, कोई उससे बात नहीं लेता। আৰু আমি যদি কোনোবা বেলেগ মানুহ আমাৰ দুখবোৰ কওঁ, সিহঁতে উল্টা আৰু এইবিলাকত পঢ়াই চঢ়াই আৰু আমাক দুখ দিয়াৰহে চেষ্টা কৰোঁ, কোনেও আমাৰ দুখবোৰ ভগাই নলয়। 4 नंबर, लघु उत्तर दो क संत कबीरदास का परिचय दो। क नंबर था संत कबीरदासर परिचय দিব লাগে। उत्तर, संत कबीरदास हिंदी के एक लोकप्रिय कवि हैं। संत कबीरदास हिंदी साहित्यर एजन लोकप्रिय कवि। उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में जनता के लिए कविता की। তেওঁ জনতাৰ মাজত থাকি জনতাৰ বাবে জনতাৰ ভাষাৰে কবিতা ৰচনা কৰিছিল। वे मूलतः एक भक्त कवि थे। তেওঁ এজন ভক্ত কবি আছিল। निर्गुण निराकार राम उनके आराध्य रहे। তেওঁ संत कबीरदासर आराध्य देवता আছিল কোন? निर्गुण निराकार राम, भगवान राम। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ, महान। कबीर शब्दर अर्थটো হ'ল ডাঙৰ, শ্ৰেষ্ঠ, মহান। सचमुच महात्मा कबीरदास महान कवि थे। তেওঁ সঁচাকৈ এজন মহান কবি আছিল। उनका जन्म काशी में 1398 इंग्राजी को हुआ था। তেওঁৰ জন্ম কাশীত 1398 इंग्राजीत হৈছিল। 1518 इंग्राजी को मगहर नामक स्थान में उनका देहावसान हुआ। আৰু 1518 इंग्राजीत তেখেতৰ মগৰ নামৰ এখন স্থানত দেহাৱসান হয়। उनकी कविता अमृत बाणी के समान है। और তেওঁৰ কবিতাবোৰ অমৃত বাণীৰ সমান। খ, কবি ৰহিম के परिचय दो। এতিয়া কবি ৰহিমৰ পৰিচয় দিবলৈ কোৱা হৈছে। उत्तर, नीति के कवि रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खानखाना। उनका जन्म 1556 इंग्राजी को हुआ था। वे मुगल सम्राट अकबर के मंत्री बैरम खां के पुत्र थे। আব্দুর রহিমৰ সম্পূৰ্ণ নামটো আছিলে আব্দুর রহিম। কবি ৰহিমৰ সম্পূৰ্ণ নামটো আছিল আব্দুর ৰহিম খানখানা। আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1556 ইংৰাজীত। আৰু তেওঁ কি আছিল? মোগল সম্ৰাট আকবৰৰ মন্ত্ৰী बैरम खां के पुत्र, बैरम खां पुत्र আছিল। वे एक तरफ राजकार्य में निपुण थे तो दूसरी तरफ अच्छी कविता भी करते थे। बैरम खां কি আছিলে? ৰাজকাৰ্যত বৰ নিপুণ আছিল আৰু অন্যফালে তেওঁ কি কৰিছিল? ভাল কবিতাও লিখিছিল। कवि गोस्वामी तुलसीदास से उनकी गहरी मित्रता थी। और कवि गोस्वामी तुलसीदासर লগত তেখেতৰ मित्रता আছে, बंधुत्व আছিল। कवि रहीम बड़े दानी भी थे। कहते हैं कि कवि गंग को उनकी एक रचना पर रहीम जी ने 36 लाख रुपए दिए थे। 1638 इंग्राजी को उनकी मृत्यु हो गई। और 1638 इंग्राजी तेखतर मृत्यु है। ग, निम्नलिखित साखी का सरल अर्थ लिखो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। এই বাক্যটোৰ অৰ্থটো লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। उत्तर, इस साखी का अर्थ है कि मीठी बोली हमेशा औषधि का काम करती हैं, लेकिन कड़वा वचन एकदम नोकिले बाण की तरह होते हैं। কি হৈছে? মিঠা কথাবোৰ কি হয়? ঔষধৰ নিচিনা কাম কৰে। আৰু যিবিলাক কঠোৰ বচন সেইবোৰ কি? একদম নখিলে বাণ কি তাৰ মানে
বানৰ নিচিনা টান কথাবোৰ বৰ আঘাত দিয়ে আৰু यह बाण कान के रास्ते से भीतर घुसता है और पूरे शरीर को दुख देता है আৰু এই যে কটু বচন এইবোৰ কি আমাৰ কাণৰ মাজেৰে শৰীৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে আৰু আমাৰ গোটেই শৰীৰটো দুখ দিয়ে घ निम्नलिखित दोहे को गद्य रूप दो रहीम देखी वरेन को लघु ना दीजिए दाढ़ी जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी এই বাক্যশাৰীৰ সহজ ভাষাত লিখিবলৈ দিয়া হৈছে বা গদ্য ৰূপত লিখিবলৈ দিয়া হৈছে उत्तर तलवार और सुई दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है जीवन में बड़े से लेकर छोटे तक सभी चीज़ों का महत्व एवं गुण होता है तरोवाल আৰু বেজী দুইটাৰে নিজৰ নিজৰ বিশেষত্ব আছে জীৱনত সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে सबरे महत्व और गुण থাকে अगर हम यह सोचे कि हर क्षेत्र में बड़ा ही काम आएगा तो ये हमारी भूल होगी আমি যদি ভাবোঁ যে সকলো ক্ষেত্ৰতে ডাঙৰ বস্তুৰে বা ডাঙৰেহে কৰিব পাৰে তেনেহ'লে এইটো আমাৰ ভুল ধাৰণা इसलिए जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती য'ত এডাল আমি বেজীৰে কাম কৰিব পাৰোঁ তাত আমাৰ তৰোৱালৰ आवश्यकता नाথাকে इसीलिए रहीम जी ने भी अपने दोहे में कहा है कि बड़े को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए সেইকাৰণে কবি ৰহিমে কৈছে যে ডাঙৰক দেখি পেলাই সৰুক এৰি দিব নালাগে 5 निम्नांकित दोहे के भावार्थ लिखो क निंदक नियरे राखिए अंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए जोने निंदा करे সেই ব্যক্তিবোৰক কি হয় घर बनाई पेलाई निजर चोतालते राखिब लगे ताकि वो व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता रहे जाते तेने व्यक्तिये बिना साबुन और बिना पानीरे आमार स्वभावक धुई पेलाई निर्मल राखिब पारे ख रहीमन निज संपत्ति बिना कोई ना विपत्ति सहाय बिनु पानी जो जलज को रवि नहीं सके बचाए विपत्ति के समय अपना साधन ही काम आता है विपदर সময়ত নিজৰ ধনে কামত আহে उस समय कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता সেই সময়ত কোনো বেলেগ মানুহ আমাৰ সহায়ক নহয় हमें अपने विपत्ति का सामना खुद ही करना पड़ता है आमार विपदर समाधान आमार निजे उलियाब लगे उदाहरण के तौर पर अगर कमल के आसपास जल नहीं होगा तो सूरज भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता उसे अपनी रक्षा खुद से ही करनी पड़ती है उदाहरण स्वरूप कमल माने पदुम फुलर ओसरे पाछे पानी ना थाके सूर्यय সেই গছটো रक्षा কৰিব নোৱাৰে उसे अपनी रक्षा खुद से ही करनी पड़ती है নিজৰ ৰক্ষাটো নিজৰ সুৰক্ষা নিজে কৰিব লাগে 2 संस्कृत भाषा से ही कालांतर में हिंदी भाषा का विकास हुआ है परंतु हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्द हूबहू प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द को तत्सम उसके अर्थात संस्कृत के समान कहते हैं जैसे ज्ञान कर्म अमृत बाणी इत्यादि কি হৈছে আমাৰ হিন্দী ভাষাটো সংস্কৃত ভাষাৰ পৰাই विकसित विकास হৈছিল परंतु हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्द हुबहू प्रयुक्त होते हैं हिंदी भाषात কিছুমান সংস্কৃত শব্দ হুবহু प्रयोग হৈছে আৰু এনেকুৱা শব্দবোৰক কি শব্দ বুলি কোৱা হয় তৎসম শব্দ বুলি কোৱা হয় যেনে
ज्ञान कर्म अमृत वाणी इत्यादि। अब तुम पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्द के तत्सम रूप लिखो। वचन, श्रवण, शरीर, शीश, सुमिरन, विथा। तो এই সুমিৰণ বিথা এই শব্দবোৰৰ তৎসমৰ ৰূপটো লিখিবলৈ দিয়া হৈছে। তো উত্তৰটো চোৱা, মই লিখি দিছোঁ বচন, वचन, शीश, श्रवण, श्रवण, सुमिरन, स्मरण, शरीर, शरीर, विथा, वृथा। 3 निम्नलिखित शब्द के विपरीतार्थक शब्द लिखो। तলৰ শব্দৰ विपरीतार्थक शब्द লিখিবলৈ দিয়া হৈছে বুঢ়া ভলা, निर्मल मलिन, साधु असाधु, भली बुरी, ज्ञान अज्ञान, गरीब अमीर, मित्र शत्रु। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে। ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিবা, আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু ভিডিঅ'টি তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।